SBA Publications. Hello my dear students, how are you all? I hope that you all are very well. Dear students, today we are going to start chapter 3, that is the journey of food. Dear students, in this chapter we are going to learn about the food that we get from plants and animals and how the food which is our home. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हमें प्लांट्स और एनिमल से फूड मिलता है एंड हाउ द फूड विच इज़ आवर होम, और खाना हमारे घर तक कैसे पहुंचता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग. We eat a variety of foods which include fruits, vegetables, cereals, pulses, milk and meat products. Most of the foods that we eat comes from plants and animals. Dear students, हम जितना भी खाना खाते हैं उसमें से सारा खाना या तो हमें प्लांट से मिलता है या फिर हमें एनिमल से मिलता है. जैसे all kind of dairy products, eggs, meat, chicken, these all we get from animals, and fruits, vegetables, pulses, cereals, these all we get from plants. Okay, now food from plants: cereals, pulses, fruits, vegetables, spices and the oils we use for cooking are all obtained from different kind of plants. We get beverages such as coffee, tea and cocoa from plants. People have used herbs and spices to add flavor to their food. Okay, and spices also helps to preserve the food. Now these are also obtained from plants. These means here स्पाइसेस मीन्स स्पाइसेस भी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट्स से ही मिलते हैं और ये हमारे फूड को एक अलग फ्लेवर देते हैं और हमारे फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, ख़राब होने से बचाते हैं. तो ये सब चीज़ें हमें मिलते किससे हैं? प्लांट से. फर्स्ट वन इज सीरियल्स, जिनको हम मोटे अनाज के नाम से भी जानते हैं. लाइक वी कैन से दैट राइस, wheat, oats, millets and corns. These are the parts of cereals. These are known as cereals. Okay, और इनमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन किस चीज़ का होता है? इनमें तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलते हैं, वो मिलता है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स. They are rich in carbohydrates. Food grains like rice, wheat, oats, millets and corn are called cereals. Rice and wheat are the main food क्रॉप्स. ओके, जैसे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा कंजप्शन किसका होता है? वीट का. एंड साउथ इंडिया में ज़्यादा कंजप्शन किसका होता है? साउथ इंडिया में ज़्यादा कंजप्शन राइस का होता है. तो राइस का यूज़ कैसे किया जाता है? बॉईल करके जनरली हम पल्सेस के साथ यूज़ कर लेते हैं, है ना. और इसको हम यूज़ करते हैं टू मेकिंग इडलीज, डोसाज. Wheat flour is used to make chapatis, breads, pastries. जनरली हम wheat flour को यूज़ करते हैं चपातीस बनाने के लिए, पेस्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए, कुकीज़ बनाने के लिए. तो जनरली नॉर्थ इंडिया में wheat यूज़ किया जाता है और साउथ इंडिया में राइस. नाउ वी हैव पल्सेस. पल्सेस मतलब दालें, और पल्सेस किस चीज़ का सोर्स है? पल्सेस आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन. They contain protein. Different types of pulses are grown in our country. Some of them are kidney beans. These are kidney beans. Kidney beans मतलब राजमा. Black grams, moat beans and dry green peas. These all are known as pulses and they have protein. They are rich in protein. Dear students, pulses are eaten with cereals.
हम पल्सेस का यूज़ कैसे करते हैं? राइस के साथ या चपातीज के साथ, ब्रेड्स के साथ। नाउ वी हैव fruits and vegetables. Dear students, fruits and vegetables are rich in minerals and vitamins. Okay, we eat different types of fruits. Some fruits like apples and mangoes are fleshy in nature, while oranges and lemons have a lot of juice. Dear students, हमारे जो fruits होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई तो ऐसे हैं जिनमें जूस बहुत ज़्यादा जूसी है उनका नेचर, लाइक ऑरेंजेस एंड लेमन, और कुछ है फ्लैशी नेचर में, मीन्स उनमें जूस की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। उनका एग्जाम्पल है एप्पल्स एंड मैंगोज। आमंड्स, कैश्यूज एंड वॉलनट्स आर ड्राई फ्रूट्स। ओके, ये क्या है हमारे? ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं। और ये सब हमें मिलता किससे है? प्लांट से। दीज आर प्लांट बेस्ड। Vegetables are eaten in form of edible stalks, seeds, flowers, leaves and even roots. Dear students, हम जब कोई प्लांट का यूज़ करते हैं, प्लांट का यूज़ बहुत तरीके से किया जाता है। लाइक किसी प्लांट का तो कोई सा पार्ट एडिबल होता है, किसी का कोई पार्ट एडिबल होता है। लाइक वी कैन से दैट स्पिनच, इट इज लीफ। स्पिनच आर लीव्स। सो अलग अलग प्लांट्स के हम अलग अलग पार्ट का कंजप्शन करते हैं। किसी का सीड्स यूज़ करते हैं हम, किसी के स्टेम, किसी की लीफ, किसी के फ्लावर और किसी के फ्रूट्स। कॉलीफ्लावर इज द फ्लावर ऑफ अ प्लांट। हम कॉलीफ्लावर यूज़ करते हैं, वो क्या है? वो एक फ्लावर है। ओके, ग्रीन पीस आर सीड्स, पोटैटो एंड जिंजर आर स्टेम्स, स्पिनच एंड लेटस आर लीव्स, क्यूकम्बर एंड टमाटोज आर फ्रूट्स। सो हम कह सकते हैं कि हम अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट का यूज़ करते हैं। किसी की लीव्स खाने लायक नहीं होती, किसी के फ्रूट्स खाने लायक नहीं होते हैं। नाउ वी हैव स्पाइसेस। दीज आर ऑल स्पाइसेस। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी किचन का मेन इंग्रेडिएंट है, क्योंकि स्पाइसेस हमारी किचन में आपको सब मिलेंगे। ये हमारे फूड को प्रिजर्व करते हैं और हमारे फूड को क्या देते हैं? फ्लेवर देते हैं, हमारा फ्लेवर को ज़्यादा एनहेंस करते हैं। स्पाइसेस ऐड फ्लेवर टू आवर फूड। सम ऑफ द स्पाइसेस वी कॉमनली यूज इन आवर फूड आर cloves, peppercorns, cardamom, turmeric, chilies, curry leaves, mustard seeds, fenugreek and coriander seeds. ये कॉमनली यूज स्पाइसेस हैं जिनका हमारी किचन में डे टू डे यूज होता रहता है। वी गेट दीज स्पाइसेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। डियर स्टूडेंट्स, इनमें भी किसी के तो हम लीव्स का यूज करते हैं, लाइक करी लीव्स, किसी के फ्लावर्स लाइक क्लोव्स, किसी के सीड्स लाइक पेपरकॉर्न्स। सो हर एक प्लांट का अलग अलग पार्ट है, वो ही एडिबल होता है। नाउ वी हैव ऑयल सीड्स। क्या आपको पता है आपको ऑयल किस चीज़ से मिलता है? डियर स्टूडेंट्स, हमें जो ऑयल मिलता है वो सीड्स से मिलता है, और सभी सीड्स में ऑयल नहीं होता। ऑयल सीड्स अलग होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। Different kinds of oils are used in different parts of India for cooking. Oil is extracted from special seeds called oil seeds. Oil seeds की अलग से प्रोडक्शन की जाती है। Oil seeds are crushed to get oil. उनको क्रश किया जाता है जिससे उनसे ऑयल बाहर आ जाता है। Like groundnut, soybean, sunflower, sesame, olive and mustard are some of the most commonly used oils. Look at this picture. It is the bottle which have groundnut oil. This bottle have olive oil and this one have mustard oil. Dear students, जैसा मैंने आपको बताया था राइस का यूज़ सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में होता है, ऐसे ही कोकोनट ऑयल का यूज़ भी सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में किया जाता है। Now we have beverages. क्या आपको पता है beverages क्या होते हैं? Dear students, all kinds of drinks except water are known as beverages.
Leaves of some plants are used to make drinks. These drinks are called beverages. Tea, coffee are popular beverages. Coffee powder is made from coffee beans. These are the coffee beans. Now we have food from animals. Dear students, all kind of dairy products we get from animals. Dear students, we get milk and milk products like butter, curd, cheese, paneer from animals only. We get eggs from hens and ducks and meat from chicken, goat and sheep. Honey is obtained from honey bees. तो हमें अलग अलग एनिमल से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं. लाइक हनी से हम हनी मिलता है हमें हनी बीज से. ऐसे ही हमें एग्स मिलते हैं हैंस और डक से. जनरली हम मिल्क यूज़ करते हैं बफेलो, काओ एंड गॉट मिल्क. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं फार्मिंग. मतलब जो हमें खाना मिला है, हमारी प्लेट तक जो फूड हमें मिला है वो हमारे तक कैसे आया है. ओके, द जर्नी ऑफ अ क्रॉप स्टार्ट्स इन द फार्मर्स फील्ड. डियर स्टूडेंट्स, किसी भी क्रॉप की, किसी भी फूड की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? खेत से स्टार्ट होती है. वो जुड़ी होती है फार्मर के साथ, क्योंकि फार्मर प्रोडक्शन करेगा, उसके बाद वो उसे मार्केट में बेचेगा और तभी हमें वो मिलेगा. Farmers grow cereals, pulses, fruits, vegetables in their fields. Fruits are usually grown in orchards. Farmers prepare the soil by loosening and turning it through a special process known as plowing. Dear student, सबसे पहले सॉइल प्रिपेयर की जाती है प्लॉइंग का मेथड के थ्रू. उसको हम प्लॉ यूज़ करते हैं जब हम इसकी मतलब इसमें हम जो सॉइल है उसको लूज़ कर देते हैं, जिससे वो उसमें न्यूट्रिशन अच्छा हो जाए, उसको अच्छे से हवा मिल जाए, जिससे वह प्रिपेयर हो जाए. और फिर हम इसमें क्या करते हैं? हम इसमें ऐड करते हैं मैन्योर, फर्टिलाइज़र, जिससे हमारी जो सॉइल है उसमें कुछ न्यूट्रिशन ऐड हो जाए, ताकि जो भी फसल उगाएंगे वह अच्छे से उसका प्रोडक्शन हो सके. डियर स्टूडेंट्स, जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये हमारी सॉइल को, हमारी क्रॉप को एक अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं. मैन्योर नेचुरल होता है और फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं. मतलब ये ऑर्गेनिक है और ये केमिकल बेस्ड होते हैं. नाउ द सॉइल इज लेवल टू मेक द सरफेस इवन. अब हमारी जो सॉइल है उसको लेवलिंग की जाएगी. उसकी लेवलिंग करने के बाद उसमें सीड्स लगाए जाएंगे. सीड्स लगाए जाएंगे ढंग से गैप के साथ, और उनको प्रॉपर तरीके से पानी दिया जाएगा. मतलब हवा तो उनसे मिलती ही है. हम उसके बाद अपनी सीड्स को प्रॉपर तरीके से पानी देंगे. बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालते स्टार्टिंग में. पानी देने के बाद जैसे ही उनको अच्छे से हवा मिलती रहेगी और पानी मिलता रहेगा, उनमें से स्प्राउटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी. And after sprouting, the growing plants need to be watered regularly. जैसे ही हमारी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारा प्लांट थोड़ा सा ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है. अब इसको पानी की नीड रेगुलर बेसिस पे होती है. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर टू ग्रो. नेक्स्ट, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर स्प्रेड टू कीप द प्लांट सेफ फ्रॉम इंसेक्ट्स. उसके बाद हम इन पे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं, ताकि जो हमारी क्रॉप है वो इंसेक्ट्स फ्री रहे, क्योंकि इंसेक्ट उससे क्या करेंगे? पूरी की पूरी क्रॉप को खराब कर देंगे. When the crops are ripe, they are harvested. जैसे हमारी फसल पक जाएगी उसे काट लिया जाएगा. उसके बाद after this the grains are separated from plants. डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे जो सीरियल्स हैं उनको यूज़ कैसे किया जाता है? हार्वेस्टिंग के बाद उसकी थ्रेशिंग होगी, मतलब उसमें से अनाज को अलग किया जाएगा. उसके बाद विनोइंग के मेथड के थ्रू उसमें से हस्क को अलग कर देंगे. एंड जो हस्क अलग करने का प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज विनोइंग.
Now, the harvested crops have to be sold quickly. Vegetables and fruits get spoiled fast and they can't be stored for too long. They are therefore called perishable foods and need to be quickly transported to the wholesale market. Dear students, अब हमारा जो फार्मर है इनको होलसेल मार्केट में लेके जाएगा अपनी क्रॉप को. जैसे हमारे जितने भी सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, इनको हम लॉन्ग टाइम तक भी स्टोर कर सकते हैं, बट वी कांट स्टोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. दीज आर पेरिशेबल आइटम्स. ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इनको जल्दी से जल्दी मार्केट में लेके जाया जाता है, होलसेल मार्केट में. वहाँ इनको बेच दिया जाता है. तो जो हमारे होलसेलर्स हैं, उन होलसेलर्स से हमारी वेंडर्स और रिटेलर्स वहाँ से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीरियल्स को खरीद के लाते हैं और उसके बाद हम एज अ कस्टमर उन्हें खरीदते हैं. और इस तरीके से वो फार्मर्स टू मिडलमैन यानी कि होलसेलर्स टू रिटेलर्स एंड देन वी कंज्यूमर, वो यहाँ तक हमारी प्लेट तक पहुँचता है. नाउ कम्युनिटी ईटिंग. कम्युनिटी ईटिंग मतलब ग्रुप में खाना, साथ में खाना. इट इज मच मोर फन टू ईट विथ फैमिली than to eat alone. And it is even more fun when we eat with friends and relatives on various occasions. Dear students, जनरली हम लोग घर में अकेले खाना खाते हैं, बट जैसे फैमिली गेट टुगेदर होता है तो हम सब साथ में खाना खाते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टीज़ में, किसी और फंक्शन में, वेडिंग्स में. तो इससे और ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है. नाउ eating together with other members of our community on special occasions is called community eating. स्पेशल ओकेजन्स पे और लोगों के साथ मिलके खाना, फूड शेयर करना, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी ईटिंग बोलते हैं. Eating together increases the feeling of oneness and inculcates the habit of sharing. Dear students, साथ में खाने से शेयरिंग की हैबिट बनती है और हमें एकता यानी कि वननेस की फीलिंग आती है. नाउ वी हैव लंगर. दिस इज ऑल्सो कम्युनिटी ईटिंग. डियर स्टूडेंट्स, जो लंगर है वो गुरुद्वाराज में सर्व किया जाता है और इसको स्टार्ट किया था हमारे गुरु नानक देव जी ने. Langar is a community meal that is served in gurdwaras. At the langar, food is cooked in large quantities and served to people free of cost. Now, people, irrespective of their caste and status, eat together. सब लोग साथ में वहाँ पे खाना बनाने वाले भी साथ में बनाते हैं और खाने वाले भी साथ में बैठकर खाते हैं. यहाँ पर किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, सब इक्वल होते हैं. The concept of sharing food is emphasized. Many people are involved in organizing a langar. बहुत लोग साथ में मिलके यहाँ पर सेवा कराते हैं, फूड सर्व कराते हैं, फूड प्रिपेयर कराते हैं. और there are people who prepare the food, others who serve the food after it is prepared, and another group that ensures that the place is cleaned after the food is served. खाना सर्व करने के बाद उस लंगर हॉल को पूरा क्लीन किया जाता है और वहाँ पर भी सब लोग साथ में मिलकर ही क्लीनिंग करते हैं. तो ये एक कम्युनिटी ईटिंग का एग्जाम्पल है. Food is served in disposable plates and they are made from dried and pressed leaves. The langar was started by Guru Nanak Dev Ji. It combines three noble principles. First one is charity, second is community service and third one is social equality. आप इससे हमें तीन चीज़ें मिलती हैं. चैरिटी, हम यहाँ पर डोनेट भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास डोनेशन के लिए कुछ है तो हम डोनेट कर सकते हैं. सेकंड, कम्युनिटी सर्विस, यहाँ सब लोग साथ में हो जाते हैं. और सोशल इक्वालिटी, इससे सब लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाता है क्योंकि सब लोग साथ में मिलके काम करते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ
langar at Gurdwara. Now, eating during festivals, weddings and birthdays. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. तो इंडिया में अलग अलग फेस्टिवल्स के टाइम पे अलग अलग फूड का यूज़ किया जाता है. अलग अलग टाइप की स्वीट्स हैं जो फेस्टिवल्स पे ही बनती हैं. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन traditional delicacies that are eaten during festivals. Besides eating together on occasions like weddings and birthdays, people also eat together during festivals. Like सेवैयाँ, इसको ज़्यादातर ईद पे बनाया जाता है. घेवर, इसका यूज़ हम सावन के महीने में करते हैं. गुजिया, ये फेमस है होली के लिए. ऐसे ही अलग अलग फेस्टिवल्स पे हम अलग अलग टाइप की स्वीट्स का भी यूज़ करते हैं. नाउ, घेवर एंड फेनी आर ट्रेडिशनल स्वीट्स दैट आर ईटन इन राजस्थान ड्यूरिंग तीज एंड रक्षा बंधन. सेवैयाँ यूज़ की जाती हैं ईद पर और गुजिया होली. ड्यूरिंग नवरात्रास, पूरी, चना एंड हलवा आर गिवन एज प्रसाद. पिठास आर स्पेशल पैनकेक्स दैट आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग बिहू. बिहू के टाइम पे पिठा बनाया जाता है. ये भी एक ट्रेडिशनल डिश है. ओणम में एक स्पेशल मील बनती है ओनाशद्या, और ये 9 कोर्स मील होता है. इसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं और ये भी एक लीफ पे सर्व किया जाता है. On pongal, a sweet dish prepared with rice and milk that is eaten. Now, community eating at boarding school. Dear students, boarding school में भी बच्चे साथ में बैठकर खाना खाते हैं और जहाँ पर वो खाना खाते हैं उस प्लेस को क्या बोलते हैं? मेस. In boarding schools, students eat together in a dining hall called mess. The mess served foods according to a fixed menu. एक फिक्स्ड मेन्यू होता है लाइक मंडे टू संडे. पूरा प्रॉपर तरीके से फिक्स्ड मेन्यू होता है कि मंडे को कौन सा फूड है, ट्यूसडे कौन सा है, वेडनेसडे को कौन सा है. This encourages children to learn to eat all kinds of foods that are prepared and served. जितनी भी वैरायटी ऑफ फूड वहाँ पे बनता है वहाँ सब बच्चों को खाना होता है. इससे बच्चे सीख जाते हैं कि हमें सारी चीज़ें खानी चाहिए. नाउ, मिड डे मील. डियर स्टूडेंट्स, मिड डे मील हमारे इंडिया में सबसे पहले तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था. सबसे पहले तमिलनाडु में मिड डे मील की शुरुआत हुई थी. This is because many children study in these schools can't afford to bring healthy foods to schools. मिड डे मील स्टार्ट इसलिए किया गया था क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एक हेल्दी फूड अफोर्ड भी नहीं कर सकते, जिनको खाना मिलता ही नहीं है. तो स्कूल से उन्हें क्या हो सकता है, स्कूल से वो अच्छे से खाना खा सकते हैं. तो मतलब इससे वो स्कूल में आने के लिए और ज़्यादा एनकरेज होंगे. नाउ, द स्कीम प्रमोट्स द राइट टू food. The midday meal has the following benefits. First one is it encourages children to come to school. Second, it helps in the healthy growth of the child. And third one is it reduces inequality. यहाँ पर भी सब बच्चों को एक तरीके का खाना ही दिया जाता है, तो यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है. This is the picture of the midday meal served in a school. Dear students, let's revise what we have learnt. The most of foods that we eat comes from plants and animals. Cereals, pulses, fruits, vegetables, spices and the oils we use for cooking are all obtained from different plants. We get milk and milk products like butter, curd, cheese, paneer from animals. The journey of crop starts in the farmer's field. Now, non-perishable food items like grains and pulses are packed in bags and sold in bulk. ये खराब तो होते नहीं है. कौन कौन?
ग्रेन्स और पल्सेस जल्दी से खराब नहीं होते, तो इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं. Eating together with other members of our community on special occasions is called community eating. The Indian government has started a midday meal scheme in government schools. Dear students, here is exercise given for you which is based on this chapter. Dear students, now your class is ending here. See you in the next class with a new topic. Thank you.